ये फिजियोलॉजी की 3 प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है ना। क्यों कनेक्ट लगे पोस्ट पे कुछ ये कहीं चीज दोनों मास्टर चैप्टर में ओनली कंपैरिजन एंड वो तो 2 is in only in the sir वो उनसे वो चलिए तो कितने हेलो।
Namaskaram to all. A very welcome to the 8th episode of Prabodhini webinar series. So before starting the anything, we should pray before Lord Dhanvantari. So let's start with Dhanvantari Vandana. नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् सुरासुरे वन्दित पादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दादारमीशम् विविधौषधीनां धन्वन्तरिं रमानाथं सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदप्रवर्तारम् वन्दे पीयूषदायकम् सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Dhanvantare Namaha. So with all the blessings of Lord Dhanvantari, we are going to start the 8 of Prabodhini webinar series. And before starting the episode, I would like to revise some of the points with you. So let's start. Prabodhini webinar series is organized by Sri Babu Singh Jai Singh Ayurvedic Medical College and Hospital, Farrukhabad, UP. And we all know that Ayurveda is the gift of ancient sages who, with all their wisdoms, provided us the treatise we all are reading nowadays. We are having Charak Samhita, we are having Shushruta Samhita, we are having so many Vagbhat Samhita, Ashtang Sangraha and Ashtang Hridaya also. We are having our Laghutrais also. But it is really difficult to understand all the things what are mentioned in it because the language is the Dev language. We are reading everything in Sanskrit. So it is very difficult for common people like us to understand everything. For that, we have started the Prabodhini webinar series, and it is our effort to provide you some guides, some teachers who can make you understand all these things very easily. So Prabodhini webinar series, I would like to welcome the patron Dr. Shailendra Yadav, Chairman JS Group, co-patron Dr. Sunita Yadav, Director JS Group, and convener our principal sir Dr. Ravindra Verma sir. And with all of these people, with all the support of these people, we the organizers of Prabodhini webinar series, Dr. Niharanjan Mahanta, Associate Professor, Department of Panchakarma, Dr. Shrinas B.S., Assistant Professor, Department of Panchakarma, Dr. Gaurav Sharma, Assistant Professor, Department of Shalya Tantra, and of course me, Dr. Preeti Sahu, Associate Professor, Department of Kaya Chikitsa, are trying our best to provide all that we have and all that we collect from all over India to you people. So we have reached Prabodhini webinar series. We started on 25th April 2023 and we have completed 7 parvas of Prabodhini webinar series and reached to Parva 8 today. So before starting the scientific session, I would revise the rules and regulations what you need to follow.
Registration is mandatory. Registration is done through filling the Zoom forms provided in the link. After filling the Zoom forms, you have to join the WhatsApp group Prabodhini through the link provided. All the further proceedings will be intimated in the group. On successful submission of the form, you will get a confirmation mail containing Zoom meeting joining link. Please join the webinar with the link provided. Your name and email ID in the Google form should be correct as it will be used in your e-certificates. It is the most important point. Some people maybe they are joining the meeting with different names, and some people are registering from different email IDs. So please let us know if you are using anybody's else email ID and name also, because while making your certificates, we face some problems due to this. So your original name and email ID should be mentioned in the Google form you fill. E-certificates will be provided to all the participants attending the webinar more than 45 minutes. Please note it. Attendance is compulsory to get the certificates. You will get your e-certificate through email ID registered with us within 7 days, and thus there is no need to share your email IDs during the webinar sessions. Please enjoy the session. Please try to acquire all the knowledge what our guest speakers provide you. So don't get disturbed in between. No need to share anything in between. Only share your doubts. Ask whatever question you have in your mind, you ask the intellects who are with us, and enjoy this session. So with this, I would like to thank you for today, and for carrying out the scientific session forward, I would like to invite our Dr. Rambabu Tentu sir, who will handle the moderator for the scientific session and welcome our guest of today. Thank you. Namaste all. Myself, Dr. Rambabu, Associate Professor. Thank you, Dr. Pritimayi, for inviting me to start and moderate the session. First of all, we are welcoming you all, and thank you so much for our management and our principal, sir, Dr. Ravindra Verma, for conducting and arranging our today's guest speaker with hectic schedule. Thank you so much, sir. Now, I'm introducing today's our guest speaker, Dr. Saurabh K, Associate Professor, Department of Samhita Siddhanta, Ayurveda Mahavidyalaya, Hubli. Now I am want to brief information about our today's guest speaker. Sir was founder of Tadvidya Sambhasha Parishad, the organization which conducts academic activities in both online and offline modes. Sir was an organizing secretary for Tadvidya Sambhasha Parishad previously. International conferences held in 2017 and 2018, 2019, 2023. Sir also is a founder of TSP, PGET coaching, and sir have a Tadvidya Sambhasha Parishad YouTube channel also. We are very happy and lucky to have sir today on today's session. And now I'm requesting our speaker, Saurabh K sir, to start the session, enlighten our participants with his excellence experience on Samhita with written words we want to learn from sir. Sir, over to you, sir. Thank you. Namaste. Am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. So, namaste. अद्यतनं स्ववर्णाश्रमोचितं देशकालावस्थोचितं नित्यनैमित्तिककाम्यकर्म यथाशक्ति यथा ज्ञप्ति यथा वैभवं करिष्ये मदाज्ञाकारिभिः विद्यासम्बन्धिभिः देहसम्बन्धिभिश्च त्वदीयैः अशेषजनैः त्वत्सर्वकर्तृत्वकारयितृत्वाद्यनुसन्धानपूर्वकं कारयिष्ये च। अत्र उपस्थिताः इदं स्थले दूरवाण्या मुखान्तरे संलग्निताः सर्वे अध्यापकवृन्दाः अपि तथा
श्रवणेन्द्रियतः श्रूयताम् अनेक सहभागी ज्ञानाकांक्षिणः तथा च विद्यार्थी गणाः अपि वयम् अभिवादयामः। अत्र प्रस्तुत विषये संहिताग्रन्थस्य अनेक शब्दाः अनेक वाक्याः बहु क्लिष्टा इति दृश्यते, किन्तु तैः सर्वे शब्दाः क्लिष्टा नास्ति। यद्यपि भक्त्या विरक्त्या ग्रन्थावलोकनं यद्यपि कर्तुं तत्र नापि विधाः विषयस्य क्लिष्टतमं न दर्शयति। आज के इस अवसर पे हम चरक संहिता ग्रंथ में उल्लेखित अनेक विषयों के आधारभूत सिद्धांत को मूल तत्व समझते हुए संहिता ग्रंथ में व्याख्यात कानिचित शब्दों का हम थोड़ा अवलोकन करने का प्रयास करेंगे और ग्रंथ की गहराई शब्द से होता है ये जानकर हम उस ग्रंथ की मर्यादा और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रथमतः मैं अपने भाई के समान रहने वाले फर्रुखाबाद के इस महाविद्यालय के प्रांशुपाल वैद्य रविंद्र वर्मा सर को बहुत बहुत अभिवादन देता हूँ, और मिसेस वर्मा मैडम, सरिता मैडम भी बहन के समान, जब वो हुबली में थे हमारा एक फैमिली जैसा था रिश्ता, तो उस रिश्ते के आधार पर उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया, तो मैं उन दोनों के लिए अत्यंत आभारी हूँ। और विभाग से जोड़ने के नाते संहिता विभाग के प्राध्यापक फर्रुखाबाद के कॉलेज के जो भी उपन्यासक हो या प्राध्यापक हो उनको भी मैं अपना अभिवादन देता हूँ। और some disturbance, ठीक है। और बाकी सभी मैडम और सर को मैं नमन करते हुए आप सभी को इस ग्रंथ के कुछ विशिष्ट शब्दों के अध्ययन के श्रृंखला में आपको मैं स्वागत करता हूँ। Am I okay to speak in Hindi or should I go with English? Whichever is designated. Sir, I will both the be- languages are comfortable. So English, you may use English and Hindi both. No issue. भारतीय भाषा अत्यंत महत्व का है, तो इसलिए मैं भारत के कोने कोने में पहचान रहने वाला हिंदी भाषा में ही अपना व्याख्यान देने का इच्छा रखता हूँ। Okay, sir. Yes, sir. जब जब बीच में अगर कुछ एक्सप्लेनेशन का जरूरत है जहाँ पे इंग्लिश जरूरी लगता है, उस स्तर पे मैं डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज करने का प्रयास करता हूँ। तो चरक शब्द ही अत्यंत महत्व का है। चरक, चकारम चरणशीलः रमन्ते इति रः ज्ञाने। चकारम चरणशील, चरणशील यानी चलने वाला, हर वक्त चलते रहने वाला। और चलते चलते चरक क्या करते हैं?
रमन्ते इति रहा हितं मनोहारि च दुर्लभम विचः। रमन्ते यानी उत्साह बढ़ाते हैं, जहां जहां चरक जाते हैं वहां पे उत्साह बढ़ता है, यानी आनंद बढ़ता है। ऐसा गतिमान जो है उसको चर कहते हैं। और चर शब्द का अर्थ जब हम दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो चर शब्द का अर्थ दीर्घकाली ऐसा अर्थ मिलता है। और उसको ककार का एडिशन हुआ है, तो इस ककार से एकाक्षर शब्द कोश में ज्ञान को क कहा है। अकय प्रविसंभूमाह अहा इति ज्ञानवाचकः। अकय प्रविसंभूमाह अहा, इन शब्दों को ज्ञानवाची शब्द ऐसे एकाक्षर शब्द कोश में उल्लेखित है। और क शब्द से दूसरा अर्थ कल्याणकारी है। जैसे इनिशियल बोलने का जो पद्धति दुनिया में है, समझिए मेरा नाम सौरभ कुकटनूर है, तो यहाँ पे कैसे बुलाते हैं, सौरभ के बोलने से इनिशियल वो आगे के शब्द का अर्थ देता है। वैसे ही कल्याण ये शब्द का आद्यक्षर को चुनकर ककारः कल्याणकारित्वात् क शब्द से कहा है। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ क्या हुआ, आनंददायक ज्ञान की जो चलन है वो चलन कल्याणकारी है, ऐसा ग्रंथ चरक है। यानी चरक संहिता जो भी पढ़ने का इच्छा रखते हैं, जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं, उन सभी को एक एक शब्द से बहुत आनंद मिलता है, ऐसा ग्रंथ का अभिप्राय है। और इसी के नाते मूलतः ये अग्निवेश संहिता होते हुए भी इसको चरक संहिता नाम से ही प्रसिद्ध किया गया है। क्योंकि वो प्रतिसंस्करण किया या कंप्लीशन किया वो बात तो अलग है, मूलतः उद्देश्य शायद ये भी हो सकता है कि ये आनंददायक ज्ञानकारक निरंतर गतिशील रहने वाला विषय है, इसलिए चरक कहा गया है। तो पहले चरक संहिता या आयुर्वेद संहिता ग्रंथों का निर्माण क्यों हुआ, क्यों आयुर्वेद को दुनिया में लाया गया, ये जानना बहुत आवश्यक है। उसके लिए शायद आपके पास अगर चरक संहिता है तो आप जब जब मैं रेफरेंस देता हूँ आप देख सकते हैं। और ये अच्छा होगा कि अगर आप अम, टीका सहित ग्रंथ का वाचन करते हैं तो बहुत ज्ञान संपादन कर सकते हैं। तो संहिता के प्रथमाध्याय में छठे श्लोक में एक सुंदर व्याख्यान किया है। विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः समेता पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवतः शुभः। हिमालय के पार्श्व में यानी उसके नजदीक जब एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था ऋषि मुनियों का, और उनके कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपस में चर्चा करने के लिए प्रारंभ किया। क्या चर्चा हो रहा था कि हमारे साधना में, साधना यानी अपने स्वधर्म अनुष्ठित कर्म, इसके इसके साधना में बहुत बाधा आ रहा है। और यह बाधा क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने स्वास्थ्य में, शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य में बाधा है। और इस बाधा को निवारण कैसे करें, इसके ऊपर उन ऋषि मुनियों ने चर्चा करने का प्रारंभ किया। और उन्होंने बोला यदा रोगा विघ्न भूतः, भूतों के विघ्न होने के वजह से जब जब रोग उत्पन्न होते हैं, कहाँ पे, शरीराणाम प्रादुर्भूता शरीराणाम। भूत शब्द का अर्थ यहाँ पे जो पेड़ पे लटकता है, सफेद कपड़ा पहनता है, रात में सिर्फ आता है, पैर एड़े टेढ़े रहते हैं, ये भूत नहीं है। भू सत्तायाम इति धातो हो,
इति भूतः। भूसत्तायाम यानी जीवी, सूक्ष्म जीवी, जिसको हम अभी के जमाने में अगर जानना चाहेंगे तो शायद वायरस होगा, फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, अन्य कई तरह के जो सूक्ष्माणु जीवी है उनको भूत शब्द से व्याख्यात किया गया है। और इस वायरस के किंगडम में या बैक्टीरिया के किंगडम में जब विघ्नता आया, विघ्न आना यानी उन बैक्टीरिया या वायरस के जो किंगडम है उसमें अगर कोई तरह का विकृति आया या उनका किंगडम विकृत रूप से बढ़ गया, तब वो शरीर में, हर व्यक्ति के शरीर में वायरस और बैक्टीरिया 24/7 मौजूद है। जब भी उनके क्रियाकर्म में द्रव्यतः गुणतः कर्मतः वृद्धि या क्षय होता है तभी वो व्याधि को देते हैं। उसको ही कहा कि विघ्न भूता यदा रोगा, रोग की उत्पत्ति शरीर में तभी होगा जब भूतों में विघ्नता आती है। तो उससे क्या होता था, तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत के जो निष्ठ ऋषि थे उनके इस कार्य में बाधा आया। तब उन्होंने कहा समेता पुण्य कर्माणः पार्श्वे हिमवत शुभे। पुण्य कर्म के चर्चा के लिए जब जब ऋषि मुनि बैठे थे उन्होंने ऐसे चर्चा किया कि हम इससे बाहर कैसे आए। तब वहां पे कौन कौन ऋषि थे उसके बारे में आगे ग्रंथकार कहते हैं। आंगिरा जमदग्निश्च इत्यादि इत्यादि वाक्य में 48 महाऋषियों के बारे में यहाँ पर व्याख्यान है। तो ऋषि शब्द का अर्थ ये नहीं है कि वो जटा है, दाढ़ी छोड़ा है, गले में रुद्राक्ष डाला है और भस्म गंधादि लेपन किया है, पैर में लकड़ी के चप्पल पहनते हैं और ये जब देखो तब आंख बंद कर पद्मासन में ध्यान कर दे, ये ऋषि नहीं है। ऋषि शब्द का अर्थ डिक्शनरी में साइंटिस्ट है। ऋषि शब्द का अर्थ डिक्शनरी में साइंटिस्ट से है, यानी ये सभी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस विषय के ऊपर मुद्दा शुरू किया और उन्होंने चर्चा करने के लिए प्रारंभ किया। क्या चर्चा हो रहा था? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ है, इनके सिद्धि के लिए आरोग्यवान होना अत्यंत आवश्यक है। और जब किसी व्यक्ति का आरोग्य अस्थिर होता है तो धर्मार्थ कामादि का संपादन करने में या धर्मार्थ कामादि का नियमन करने में बहुत बाधा आकर मोक्ष की प्राप्ति में उनको बहुत दिक्कत होता है। ये समझकर उन्होंने कहा रोगाः तस्य अपहर्तारः श्रेयसः जीवितस्य च। ये जो रोग प्रादुर्भूत है, यह रोग उन सभी को, धर्म अर्थ काम को अपहरण करता है और व्यक्ति को अधर्मी, अनर्थी और अन्यथा कामी बना के अमोक्षी यानी पुनर्जन्म में डालता है। इसके लिए जीवित में धर्म अर्थ काम मोक्ष को अगर पाना है तो उसके लिए आरोग्यवान रहना अत्यंत महत्व का है, ऐसे ऋषि मुनियों ने उद्गार किया। तो तब आगे क्या कहते हैं, प्रादुर्भूता मनुष्याणाम अंतरायो महानायम कह स्यात् तेषां शमोपायः इत्युक्ता ध्यानमास्थितः। कृपया ध्यानमास्थिता शब्द को अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए और उसके ऊपर व्याख्यान बहुत सुंदर सा है, वो हम देखेंगे। क्या कहते हैं, ऐसा रोग जो धर्मार्थ कामादि को डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा रोग मनुष्यों के देह में ऑलरेडी मौजूद है। तो इस रोग से निवृत्ति कहाँ मिलेगा? कहा स्यात् तेषां शमोपायः। तेषाम इति रोगाणाम च शमोपायः कहाँ कहाँ पे मिलेगा? ऐसे ऋषि मुनि अपने आप में प्रश्न करने लगे और कहा इति उक्ता ध्यानम आस्थिताः। ध्यानम आस्थिताः, ध्यान में बैठकर उन्होंने चिंतन करने प्रारंभ किया कि इस रोग क्यों आया और इसका उत्तर कहाँ पे है।
अथ ते शरणम शक्र, उन सभी के ध्यान अवस्था में जब ये सोच चलने लगा था और उनको ऐसा एक विषय उनके मन में आया कि अथ ते शरणम शक्र, शक्र शब्द का अर्थ इंद्र है। उनको ये मालूम हुआ कि आयुर्वेद में ऐसे रोगों के शमन के लिए अत्यंत महत्व के उचित नियम मिलते हैं। तो ये आयुर्वेद कहाँ पे मिलेगा? तो उनको मिला कि नजदीक के व्यक्ति के पास हम आयुर्वेद सीखने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक नियम है। वो नियम मैं आगे आपको दिखाता हूं कि उन्होंने कहा, अथ ते शरणम शक्र ददृशु यथावत ज्ञान चक्षुषा, सॉरी ध्यान चक्षुषा, पुनः आप ध्यान चक्षु को अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पे इस अध्याय में 2 बार चक्षु शब्द का प्रयोग है। एक बार ध्यान चक्षु है और दूसरी जगह पे ज्ञान चक्षु, ऐसे 2 चक्षु शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। वहां पे क्या कहा? अपने ध्यान में स्थित ऋषि मुनियों को अपने ध्यान चक्षु से यानी अंतर चक्षु से उनको ये मालूम पड़ा कि इस रोग के उपाय इंद्र के पास है। चक्षु शब्द का अर्थ यहाँ पे ऐसे कहा है कि चक्षु ध्यान चक्षु साधनम, ये साधन है। चक्षु ये इंद्रिय चक्षु नहीं है, ये साधन रूपी चक्षु है। ऐसे चक्षु ध्यान के साधन रूप से उनको समझ में आया कि रोगों के शमन के उपाय इंद्र के पास है। स वक्षति शमोपायम यथावत अमर प्रभु, मर शब्द का अर्थ मरण है, जिसका मरण निश्चित है। अमर यानी जिसको मरण नहीं है, यानी देवता है। देवताओं के प्रभु यानी इंद्र, उनके पास इस रोग के शमन के उपाय हैं और हम सभी उनके शरण में जाएंगे तो हम डेफिनेटली आयुर्वेद को जान सकते हैं। ऐसे उन्होंने एक निर्धार किया और उन्होंने एक पॉइंट पे आके बैठ गए। आगे वो प्रश्न ये उठा कि इंद्र के पास जाने वाला कौन? इंद्र के पास आयुर्वेद है ये सभी को मालूम हो गए, लेकिन इंद्र के पास जो आयुर्वेद है उसको भूमि में लाने वाला कौन है, या इंद्र के पास जाके कौन आयुर्वेद को लेके आएगा? उनके साथ जाके वहां पे रुक के आयुर्वेद को पढ़ के उसको ज्ञान लेके यहाँ पे आना पड़ेगा ना। तो कौन आएगा, ये प्रश्न आया था। उन्होंने कहा, कह सहस्राक्ष भवनम गच्छेत पृष्टुम शशिपतिम, प्रष्टुम यानी प्रश्न, ये विभक्ति प्रत्यय किया है। प्रश्न कौन करेगा इंद्र के पास जाके? तो वहां पे आया, अगर समझिए ऐसा स्थिति में हम सभी रहेंगे कि कौन इस विषय का उत्तर देगा, कि कौन इंद्र के पास जाएगा, तो हम बोलते थे मैं नहीं, मैं आप नहीं, सभी चुप बैठते थे। लेकिन ऐसे अवकाश नहीं था वहां पे ऋषि मुनियों में, और सभी ऋषि इतने तीव्र थे तो उनमें भरद्वाज ऋषि ने कहा, अहम अर्थे नियुंजेत, मुझको चुनाया जाए कि मैं इंद्र के पास जाकर आयुर्वेद को जानकर मैं भूमि में आऊंगा। तो भरद्वाजम अब्रवीत तस्माद ऋषिभिः स नियोजितः, ऋषिभिः बहुवचन का प्रयोग है, ऋषिभिः ऋषिभिः, तो इन ऋषियों के परमिशन से भरद्वाज इंद्र के पास जाने के लिए चुने गए हैं। स शक्र भवनम गत्वा सुरऋषिगण मध्यमां सह अभिगम्य जयशीभिः अभिनंद्य सुरेश्वरम ददर्श बलहंतारम दीप्यमानम इवानलम। जब भरद्वाज इंद्र के पास गए तो वहां पे इंद्र का सौभाग्य इतना था कि हर जगह सुवर्णमयी था, और सुर ऋषि यानी देवता देव ऋषियों के मध्य में इंद्र विराजमान थे। उनको जय जयकार करते हुए, ये कॉमन है ना, किसी के पास अगर काम है तो नमस्कार सर, आपकी बहुत बहुत बधाई हो, आपने इतना अच्छा काम किया, ये किया वो किया, ये हम पहले उनको प्रशंसा करते हैं और बाद में हमारा ये थोड़ा काम है प्लीज करके दीजिए, ऐसे कहते हैं।
उसी तरह से ये नियम है, इसमें कोई संदेह का बात नहीं है कि हर एक को ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि ये नियम है। अगर किसी से कुछ लेना है तो उनकी प्रशंसा पहले करना ही चाहिए। उस नियम के अनुसार भरद्वाज ने इंद्र की प्रशंसा किया और वहां पे जाके कहा कि व्याधयाहि प्रोवाच विनयाद धीमान ऋषीणाम वाक्यम उत्तमम व्याधयो ही समुत्पन्ना सर्व प्राणी भयंकर। सभी प्राणियों में भयंकर व्याधियों का उत्पत्ति हुआ है और उस व्याधि के शमन केवल और केवल इंद्र से ही होगा। ये हमको समझ में आया तो हम आपके शरण में आए हैं। आप हमको अ, आयुर्वेद के बारे में जानकारी दीजिए, ऐसे भरद्वाज ऋषि ने इंद्र से कहा। तस्मै प्रोवाच भगवान आयुर्वेदम शतक्रतु पदैः अल्पैः अमितम बुद्ध्वा विपुलम परमर्षये। लेकिन इंद्र के पास क्या इतना समय था कि बिठा के 5 साल, जैसे हम बीएमएस पढ़ रहे हैं वैसे, क्या इंद्र भरद्वाज ऋषि को आयुर्वेद पढ़ा सकते थे कि प्रारंभ से अथातः दीर्घं जीवितम् अध्यायम व्याख्यास्यामः? नहीं, क्योंकि इंद्र के पास समय ही नहीं था। तो ऐसे समय में इंद्र ने कैसे आयुर्वेद को बताया? पदैहि अल्पैहि अमितम बुद्ध्वा। अल्प पदों में आयुर्वेद के बारे में इंद्र ने भरद्वाज ऋषि को कहा। अगर भरद्वाज के स्थान में हम कोई रहते तो हम क्या कहते हैं? हमारा बुद्धि कितना है? अल्प बुद्धि वाले हैं। तो अल्प शब्द में बताया गया तो आयुर्वेद हमको मालूम ही नहीं होगा। तो इसलिए इंद्र ने फिर भी अल्प पद में कहा, क्योंकि भरद्वाज इतना श्रेष्ठ ऋषि थे कि उनका बुद्धि अत्यंत विपुल था। पदैहि अल्पैहि अमितम बुद्ध्वा, मित यानी लिमिटेड, अमित यानी अनलिमिटेड बुद्धि वाले, विपुलम परम ऋषि, विपुल बुद्धि वाले थे परम ऋषि भरद्वाज। और उनको आयुर्वेद के अल्प शब्दों में आयुर्वेद का पूरा जानकारी इंद्र ने दिया। वही जानकारी अभी के जमाने में त्रिसूत्र आयुर्वेद से पहचाना जाता है। वह है हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदेय पितामहः। ऐसे 3 सूत्रों को इंद्र ने भरद्वाज को कहा। समझिए, हम अगर योगी रामदेव बाबा जी के पास जाएंगे और कहेंगे, बाबा जी आपका योग का साधना तो बहुत गहरा है और हमको भी योग सिखाए, क्या पतंजलि के रामदेव बाबा जी के पास इतना समय है कि हमको हर आसन सिखाए? वो बताएंगे कि यूट्यूब देख लीजिए, हमारे क्लासेस ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको पूरा जानकारी मिलेगा। इतने ही अल्प शब्द में वो बताएंगे आपको। तो उसके बाद हमारा काम क्या है? उसके ऊपर अध्ययन करना है, उसके ऊपर चिंतन करना है और प्रैक्टिस करना है, तभी हम उस विषय में गहरा ज्ञान ले सकते हैं। तो वैसे ही ऋषि ने, भरद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद के जो 3 सूत्र इंद्र ने बताया था उनको पकड़कर खुद बहुत अध्ययन किया, उसके ऊपर परीक्षा किया, रिसर्च किया और बाद में भरद्वाज ऋषि भूमि पे आके बताया। स अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति यथावद अचिरात सर्वम बुबुदे तन्मना मुनि तेन आयु अमितम लेभे भरद्वाज सुखान्वितम ऋषिभ्यो अनधिकम तच्च शशंसान अवशेषयन्। अगर हम कोई रहते कि ये दवा बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए, बुखार निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे? खुद कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। हम दूसरे के ऊपर प्रयोग करके बोलेंगे हाँ अच्छा है, अगर वो जिंदा है तो दवा अच्छा है, अगर वो मर गया तो दूसरा मरा, हम तो नहीं मरे। ऐसे बुद्धि वाले हम हैं। लेकिन भरद्वाज ने क्या किया? जो त्रिसूत्र इंद्र ने कहा था उनको अपने में अपनाया और उन्होंने ये देखा कि उनका आयु वृद्धि हो गया। ग्रंथ में उल्लेख ऐसा है कि भरद्वाज ऋषि ने कम से कम 400 साल, 400 ईयर्स त्रिसूत्र के ऊपर रिसर्च करके बाद में उन्होंने बताया कि सच है, इंद्र ने जो त्रिसूत्र आयुर्वेद बताया ये अत्यंत ज्ञानवाची यानी अत्यंत शुद्ध है, हम सभी इसको अपना सकते हैं, ऐसे ग्रंथ में व्याख्यान है।
तो भरद्वाज इंद्र के पास ही क्यों जा रहे थे, ये मेरा पहला प्रश्न था। क्योंकि नियम ऐसा है कि अगर एक गुरु है, समझिए मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मेरे अंडर पीजी विद्यार्थी है, अभी मैं जब अपने गुरु से आयुर्वेद जब मैंने शिक्षा लिया है, ये मेरा आद्य कर्तव्य है कि मैं एक दूसरे शिष्य को निर्माण करूं, और वो शिष्य का अभी जिम्मेदारी बन जाएगा कि वो एक दूसरे शिष्य को अवश्य निर्माण करना चाहिए, नहीं तो ऋषि ऋण या गुरु ऋण से मुक्त नहीं होते हैं। ऐसे अवस्था में इंद्र शिष्यार्ह थे, शिष्य को अपनाने में अर्ह थे, क्योंकि उनके पास कोई शिष्य नहीं थे। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम महामति जग्राय निखिलेनादौ अश्विनौ तु पुनस्ततः भगवत चक्र प्रतिपेदे ऋषिपति प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमारों से इंद्र, इंद्र ने अश्विनी कुमारों से विद्या प्राप्त किया था। तो अभी अश्विनी कुमार गुरु बन गए इंद्र के आयुर्वेद के विषय में, तो उनका जो गुरु ऋण था इंद्र के ऊपर वो कैसे जाएगा? अन्य एक शिष्य को जब इंद्र तैयार करेंगे तभी जाएगा। तो इस कारण से वह विद्यार्थी के ढूंढ रहे थे, इंद्र ढूंढ रहे थे, उसको कहते हैं शिष्य अर्ह, शिष्य को लेने के लिए अर्ह थे। इसलिए भरद्वाज ऋषि ने इंद्र के पास गए और वहां पे इंद्र से आयुर्वेद को जाना। और आगे कहते हैं ऋषयः भरद्वाजः जग्रहस्तं प्रजाहितं दीर्घमायुश्चिकीर्षन्तो वेदं वर्धनमायुषः। सामान महर्षयाः थे ददृशुः यथावत् ज्ञानचक्षुषा। ज्ञानचक्षु का टीका में चक्रपाणी बहुत सुंदर व्याख्यान किया है। पहला था ध्यान चक्षु, अभी दूसरा है ज्ञान चक्षु, दोनों में बहुत अंतर है, कृपया आप उसको समझ लीजिए। और अगर आपके पास टीका है तो वहां पे चक्रपाणी का व्याख्यान को अंडरलाइन या हाईलाइट कीजिए। ज्ञानार्थम ज्ञान रूपम वा चक्षुः ज्ञान चक्षुः तेन ज्ञान चक्षुषा। ज्ञानार्थ या ज्ञानार्थ के लिए यानी ज्ञान के लिए या ज्ञान रूपम व चक्षु, ज्ञान ही जो साधन है उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। और इसी ज्ञान चक्षु से हम आज के जो विषय है कि क्लिष्ट शब्दों को या क्लिष्ट वाक्यों को प्रापंचिक दृष्टि से कैसे जान सकते हैं, ये हम अभी देखने के लिए प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे लिए क्या क्या चाहिए? ध्यान चक्षु से हमको कौन से विषय में हम जा रहे हैं ध्यान चक्षु से देखना है, और ज्ञान चक्षु से विषय को ग्रहण करना है। ऐसे करने से हमारा जो ज्ञान बढ़ेगा वो ज्ञान कभी भी कम नहीं होता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चरक संहिता के 6ठे अध्याय के 50वें श्लोक पे जाइए। चरक संहिता सूत्र स्थान 6th चैप्टर 50th वर्स, पेज नंबर 48। देशानाम आमयानां विपरीतं गुणं गुणैः सात्म्यम इच्छन्ति सात्मज्ञा च इष्टिदम आद्यमेव च। सभी जगह शायद 70-80% जगह पे सात्म्य के बारे में जब जब व्याख्यान दिया जाता है तो ये कहने का जो फ्लो है ये बहुत गलत है। आई एम वेरी सॉरी, अगर ऐसे पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया गया है तो उसको करेक्शन करने का बहुत इम्पोर्टेंट वस्तु या इम्पोर्टेंट चीज है, हमको करेक्शन करना ही। सात्म्य का अर्थ बहुत लोगों को केवल ओक सात्म्य से जुड़ा जाता है, जैसे मैं दधी नित्य सेवन करता हूं, जहां पर दधी अभिसंधि है, मुझको वो सेवन नहीं करना है। रात में दधी नहीं खाना, ये ग्रंथ में उल्लेख है, न नक्तम दधि भुंजीत न चाप्याग्रत शर्करम। रात्रि काल में दधी का सेवन नहीं करना चाहिए, ये ग्रंथ में उल्लेख दिया है।
तो इसका विपरीत तंत्र युक्ति से अर्थ क्या होगा? दिन के काल में दधि का सेवन कर सकते। तो बाद में क्यों नहीं कहा ना, ये अगर प्रश्न पूछा तो दधि अभिषंदी है, दधि व्याधि कारक है, कुष्ठादि व्याधि को ला सकता है, प्रतिष्ठाय दधि से हो सकता है, ये सभी हम कहते हैं। लेकिन बाद में ये कहने के बाद जो सुनता है वो बोलेगा, अरे हम तो दधि बचपन से रात में खाते ही आ रहे हैं, हमको कभी नहीं हुआ है ऐसा। We never have suffered with any of the such diseases after eating दधि in the night time. तो इसका अर्थ क्या? और उसको क्या कहते हैं? ये वो साथ में आपको साथ में हो गया, दधि साथ में हो गया, यानी आपके बॉडी को दधि एडजस्ट हो गया है, ये साथ में नहीं है। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। विद्यार्थी ऐसे रहते हैं कि क्लास हर वक्त, एक दिन आते हैं, दूसरे क्लास को निकल जाते हैं, दूसरे क्लास में एब्सेंट रहते हैं, फिर से 2-3 क्लास आते हैं, बाद में फिर से एब्सेंट रहते हैं। टीचर को गाली देना देना ये साथ में हो जाता है, और विद्यार्थी को गाली सुनना साथ में हो जाता है। ऐसे बोलते हैं, ये साथ में कभी भी नहीं है, क्योंकि जब दधि को हम रात में खाते हैं तो व्याधि होगा, ये निश्चित है, ये कभी भी साथ में नहीं होगा, लेकिन ये धीरे धीरे व्याधि को बढ़ाएगा, और जब अवकाश मिलता है तब व्याधि अत्यंत प्रखर होकर बाहर आता है। जैसे टीचर हर दिन डांटते हैं, जब जब विद्यार्थी क्लास को नहीं आएगा तब टीचर अवश्य डांटते हैं। तो इससे क्या है, डांटना क्या बोलते हैं उसको, साथ में होगा ऐसे हम कहा, तो नुकसान किसका है? विद्यार्थी का ही नुकसान है, क्योंकि उतने क्लास में जितने विषय अध्यापक ने पढ़ाया उसका उसको ज्ञान ही नहीं रहेगा। अगर समझो अनलकीली एग्जाम में उस टीचर के उसी क्लास का, जिस क्लास में वो एब्सेंट था, उसका अगर प्रश्न आ गया तो क्या करेगा? वो फेल हो जाएगा, यानी व्याधि होगा। ये थोड़े 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 क्लास मिलकर बड़े विषय का एब्सेंस होने की वजह से वो अपने एग्जाम में फेल हो सकता है। ये साथ में कभी हो सकता है क्या? साथ में नहीं होगा, ये हरगिज साथ में नहीं है। तो साथ में शब्द का अर्थ क्या है? उसके लिए ग्रंथकार लिखते हैं 50वें श्लोक में, देशानाम आमयानाम विपरीतम गुणम गुणैहि सात्म्यम इच्छन्ति सात्मज्ञः च इष्टितम आद्यमेव च। यानी बहुवचन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। देशानाम, रामे रामयोः रामाणाम, ऐसे देशानाम देशों में, आमयों में जो गुण है उन गुण के विपरीत गुण को साथ में कहते हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज लिविंग इन अनुपदेश, जांगलम वातभूयिष्ठम अनुपम तो कफोलपणम साधारणम सममलम, तो उस अनुपदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए कफकारी गुण सामान्य से निर्भर है, यानी उस देश में जनरली कफ वृद्धि होने के लक्षण रहते हैं। तो कफ के वृद्धि को कम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? आहार और विहार जांगल के होना चाहिए, तभी वृद्धि ऑफ कफ इज चेक्ड। आर यू गेटिंग मी? यानी अनुपदेश के रहने वाले व्यक्ति के लिए जांगल मांस रस या आहार या जल या विहार या विचार ये सात्म्य होता है, क्योंकि देश के गुण के विपरीत गुण है। और आसान करने का प्रयास करूंगा। कश्मीर के स्थान में रहने वाले, यानी कश्मीर के देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए हिमपात ये अत्यंत कॉमन है। तो उनमें क्या होगा? शीत गुण की वृद्धि अवश्य होता है, क्योंकि वातावरण में शीत है, और शीत गुण से वायु और कफ दोनों बढ़ते हैं। तो उसके लिए कौन से आहार लेना चाहिए या कैसा आहार लेना चाहिए? उष्ण तीक्ष्ण आहार लेना ही है। इसीलिए हर वक्त वहां पे क्लोव यानी लवंग का प्रयोग अत्यंत उच्च स्तर पे रहता है।
और जो आंध्र प्रदेश में रहेगा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, कन्याकुमारी में जो रहते हैं, उनका वातावरण कैसा, अत्यंत प्रखर उष्ण है। क्या वो आदमी गरम गरम चाय पिएगा या पसंद करेगा? नहीं, उसको ठंडा पानी लगता है। कश्मीर में गर्म पानी क्योंकि मौसम ठंडा है, और कन्याकुमारी में ठंडा पानी क्योंकि मौसम गर्म है। इसको विपरीत गुण कहते हैं। तो ये देश के लिए विपरीत गुण। वैसे ही आमयानाम, आमय शब्द का अर्थ रोग है। रोग के विपरीत गुण समझिए, मुझे कटिशूल है, और ये कटिशूल गृध्रसी के रूप में जा रहा है, और केवल शूल है, ग्रह नहीं है, कटि ग्रह नहीं है। तो ये कैसा गृध्रसी होगा? ये केवल वातज गृध्रसी। तो ये जो शूल उत्पन्न करने वाला गृध्रसी, इसका वृद्धि, लक्षण का वृद्धि कब होता है? सुबह अर्ली मॉर्निंग या शाम में हो रहा है, क्योंकि वातावरण में शीत गुण की प्रखरता रहता है। और वो पेशेंट कहेगा मैं दोपहर में आराम रहता हूं, इसका अर्थ क्या हो गया? शीत गुण व्याधि में तीव्र है। तो उसको कब आराम लग रहा है? जब उष्णता बढ़ता है, जब सूर्य प्रखर रहता है, तब उसको आराम मिलता है, क्योंकि शीत गुण का विरुद्ध गुण वातावरण में है, व्याधि के विपरीत गुण है। तो इसको सात्म्य कहते हैं। देशानाम आमयानाम विपरीतम गुणम गुणैः सात्म्यम इच्छन्ति सात्मज्ञः च इष्टितम माध्यमेव च। ऐसे सात्म्य को प्रयोग में लाना अत्यंत आवश्यक है। तो आज के बाद दधी रात में मैं खाता हूं, ये सात्म्य है? नहीं है। पंचामृत या क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट सलाड, ये कभी भी साथ में नहीं होता, क्योंकि फ्रूट सलाड में अगर कस्टर्ड मिल्क ऐड कर रहे हैं तो विरुद्ध है। ग्रंथ में उसका उल्लेख है। शाखा और दुग्धों को साथ में लेना विरुद्ध है। तो हम क्या करते हैं? फ्रूट सलाड विथ आइसक्रीम खाते हैं। यह अत्यंत विरुद्ध है, रस विरुद्ध है, गुण विरुद्ध है, संस्कार विरुद्ध है, वीर्य विरुद्ध है, प्रभाव विरुद्ध है, जीर्ण क्रिया के लिए विरुद्ध है। दूसरा ऐसा एक और एक प्रयोग करते हैं, आइसक्रीम, बहुत अच्छा आइसक्रीम, उसके ऊपर हॉट चॉकलेट, जिसका नाम क्या है? सिजलिंग ब्राउनी। अत्यंत शीत द्रव्य के ऊपर उष्ण द्रव्य का प्रयोग करना, ये विरुद्ध है। तो ये असात्म्य है। ऐसे विषय ग्रंथ में कोने में रखा है ग्रंथकारों ने। इसका महत्व क्या है? फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि इतना महत्व का विषय चरक संहिताकार ने इतने छोटे श्लोक में, वो भी अंत में क्यों बताया? पहले ही बताया होता तो उसका महत्व बढ़ जाता। कोई उल्टा तो नहीं पढ़ते है ना। इत्यग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते गणबल प्राप्ते संपूर्ते सूत्र स्थाने इदम अध्यायम, वहां से शुरू करके ऐसे पीछे तो कोई नहीं जाएगा। सभी तो अथातः तस्याम अध्याय व्याख्यास्यामा ऐसे ही आएंगे। तो पहले उस श्लोक को अगर रखा होता तो उसका महत्व बढ़ जाता। तो ग्रंथकार ने क्यों नहीं रखा? इसका भी महत्व है। शिष्य तीन प्रकार के रहते हैं, अल्प बुद्धि, मध्यम बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि के। और शास्त्र कैसे लिखा है? त्रिविध शिष्य बुद्धि हितम, तीनों बुद्धि के शिष्यों के लिए हितकारी रहने जैसे शास्त्र को लिखा गया है। ये शास्त्र का गुण है, त्रिविध शिष्य बुद्धि हितम। तो यहाँ पे कैसे हित है? मंदबुद्धि वाला शिष्य दधी रात में नहीं खाना है, इतना ही जान लेता। मध्यम बुद्धि वाला शिष्य रात में नहीं खाना है तो दिन में हम अवश्य खा सकते हैं, ये समझकर अपने आप को थोड़ा उच्च स्थान में लेके जाता। लेकिन जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला शिष्य है, वो चिंतन करने के लिए शुरू करता है कि दधी अगर अभिसंधि है तो दिन में क्यों अभिसंधि नहीं होगा? केवल रात में अभिसंधि होता है क्या? नहीं होता है। अभिसंधि द्रव्य का एक बार अभिसंधि गुण अगर बताया तो हर वक्त पे वो अभिसंधि है।
ऐसे नहीं है कि वो दिन में अभिसंधि नहीं है और केवल रात में अभिसंधि है। ये तीक्ष्ण बुद्धि के विद्यार्थी को या तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति को समझ में आता है। ऐसे त्रिविध शिष्यों को विभाग करने के लिए ग्रंथकार ने सातवें जैसे विषय को अंत में रखा है। आगे और एक देखेंगे ऐसा ही व्याख्यान। चले जाइए, कियंत शिरसीय 17th चैप्टर है। कियंत शिरसीय नामक 17वें अध्याय में ग्रंथ का विशेष उल्लेख है। सूत्र क्रमांक 78, चरक संहिता सूत्रस्थान चैप्टर 17 और सूत्र 78। यहाँ पे एक प्रश्न हम पहले अपने आप में करेंगे और उसका उत्तर 78 श्लोक में मिलता है। डायबिटीज के पेशेंट है, यानी शुगर, रक्त स्थित माधुर्य की वृद्धि, डायबिटीज मेलिटस। जब भी पेशेंट आएगा तब हम क्या कहते हैं? शुगर के चीज इस्तेमाल मत करो, चावल कम खाओ, फ्रूट्स में बनाना, मैंगो और क्या, चिक्कू और द्राक्षी, इनको नहीं खाना है क्योंकि इनमें मधुर रस का अत्यंत प्रखर अवस्था है। क्यों कहते हैं? ग्रंथ में तो ऐसा उल्लेख है। बहुत धन्यवाद, आपने डिस्प्ले कर दिया। चरक संहिता के सूत्रस्थान के 17वें अध्याय और 78 श्लोक को आप जाइए। निदान स्थान में जब मधुमेह के बारे में व्याख्यान करते हुए, यानी मधुमेह ये एक वातज प्रमेह का प्रकार है, वहां पे निदान, वातज प्रमेह का निदान बताते हुए ग्रंथ में ऐसा व्याख्यान है कि रुक्ष, लघु, शीत, अति व्यायाम, रात्रि जागरण, अति व्यवाय, इन सभी के कारण से वायु का प्रकोप होकर अप्रकोपित वायु जब जब मूत्र में आएगा, ओज को लेके आके बाहर जब वो निकालता है, उसको हम मधुमेह कहते हैं। निदान वहां पे क्या बताया है? कषाय, तिक्त, रुक्ष आहार का सेवन। और व्याधि कौन सा है? मधुमेह। आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कितने डायबिटीज के पेशेंट्स में आहार की पद्धति ऐसे आप देखते हैं कि जो ऑलवेज कषाय रस खाता है, ऑलवेज तिक्त रस खाता है और ऑलवेज कटु रस खाता है, और जिसको के अत्यंत द्वेषी है मधुर रस के, आम्ल रस के, लवण रस के। एक भी पेशेंट आपको ऐसे नहीं मिलेगा जो मधुमेही है। तो सामान्य नियम से वातज प्रमेह के रस के अनुसार अगर चिकित्सा करना है तो कौन सा रस देना चाहिए? तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति। मारुत को शमन करने के लिए, यानी वायु को शमन करने के लिए मधुर, आम्ल, लवण रस का प्रयोग करना अत्यंत जरूरी है। और पेशेंट क्या खा रहा है? मधुर रस ही खा रहा है, और हम क्या बोल रहे हैं? नहीं खाना है क्योंकि मधुमेह होगा। तो ये कौन सा लिंक है? निदान में बताते हैं कि कषाय, कटुतिक्त के अत्यंत सेवन से वातज प्रमेह हो रहा है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उसके लिए चिकित्सा क्या होगा? मधुर रस होगा। अगर पेशेंट मधुर रस खाता है तो हम बोलते हैं नहीं खाना है। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है, ये अत्यंत महत्व का है। और इसीलिए जो सुभाषित हम पढ़ते हैं, क्या है? निदाने माधव श्रेष्ठ, सूत्रस्थाने तो वाग्भटः, शरीरे सुश्रुत श्रेष्ठ, चरकस्तु चिकित्सिते। चरक चिकित्सा में अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि चरक के हर अक्षर में चिकित्सा मौजूद है। तो इसके लिए अगर आप प्रमेह चिकित्सा या प्रमेह निदान में जाकर इसका समाधान ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। उसका समाधान सूत्रस्थान के 17वें अध्याय में है। पढ़िए, सूत्र पढ़िए। गुरु स्निग्ध आम्ल लवणानि अतिमात्रम समश्नताम, नवम अन्नम च पानम च, निद्राम आस्य सुखानि च। क्या बता रहे हैं? गुरु स्निग्ध आम्ल लवण अतिमात्रम समश्नताम, अति मात्रा में अगर खाने में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, नवम अन्नम च पानम च,
नवीन अन्न यानी इस साल में जो उगता है दाने, उसका डायरेक्टली अन्न पकाया। नवम अन्नम, नवपान यानी जो बारिश के बाद नदी में बहता हुआ पानी, इमिडिएटली कल बारिश हुआ, आज नदी में पानी बह रहा है, उसको हम लेके अगर पी रहे हैं। नवम अन्नम च पानम च निद्राम आस्य सुखानि च। निद्रा यानी सदैव सो के रहना, और आस्य सुख, आस्य यानी मुख का सुख, मुख सुख यानी अधरे मधुरम, जब देखो तब मुंह के लिए जो अच्छा, जो टेस्टी है वो खाते हैं। वो कैसे बनाया है, क्या वो दोष को बढ़ाता है, कुछ नहीं देखना, मुंह को अच्छा लगता है इसलिए खाना। आस्य सुखानि च त्यक्त व्यायाम चिंता नाम, व्यायाम को त्याग किया है, चिंता को त्याग किया है। त्यक्त व्यायाम चिंता नाम संशोधनम अकुर्वताम, कभी भी ऋतुकालीन शोधन नहीं ले रहे हैं। उससे क्या होगा? श्लेष्मा पित्तम च मेदश्च मांसं च अति प्रवर्धते। इस कारण से श्लेष्मा, पित्त, मांस, इनका वृद्धि होता है। अतिमात्रम च वर्धते तैहि आवृत गति ही वायु, इसके कारण जो वायु देह में संचरण कर रहा है, उस वायु को, उस वायु के गति में अवरोध आता है। और जब वायु के गति में अवरोध आता है, तब उस वायु, जो अवरुद्ध वायु है, वो ओज में जाता है, धातुओं में जाता है। तैहि आवृत गति ही वायु ओज आदाय गच्छति, यदा बस्तिम, आते और वापस आते हुए उस वायु अपने बस्ती स्थान में ओज को लेकर आता है। यदा बस्तिम तदा कृच्छ्रहा मधुमेह प्रवर्तते, जब वो ओज निकलता है मूत्र में, उसको हम मधुमेह कहते हैं। और अब के जमाने में जो भी मधुमेही हम देखते हैं, जो रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, HbA1c, मीन ग्लूकोज वैल्यू, ये सभी हम जो टेस्ट करते हैं, यूरिन शुगर, ये सभी पेशेंट ऐसे निदान वाले हैं। यंत शीर्षीय में बताए हुए निदान सेवन करने के वजह से प्रमेह को छोड़कर डायरेक्टली ये बाईपास आउटर रिंग रोड से गांव में नहीं आ रहा है। यानी कफज प्रमेह होना, बाद में पित्तज होना, बाद में वातज, ये जो रूटीन वे है, इनर वे, उसको छोड़कर आउटर रिंग रोड से हाईवे में पूरा डेस्टिनेशन पहुंच रहा है, जो है अल्टीमेटली वातज प्रमेह यानी मधुमेह में जा रहा है। तो ये ग्रंथ की महत्व कैसा है देखिए। हम अगर सूत्रस्थान को हो गया पहले सेकेंड ईयर में, अभी के जमाने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ गए, और हमारा हो गया सूत्रस्थान का, अब हम क्लिनिकल, हम वैद्य हैं, तो हम केवल निदान और चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे, ऐसे अगर हम कहने लगे तो प्रमुख विषय, ये अनटोल्ड ट्रुथ्स हैं। बहुत से कॉलेजेस में हम ऐसे विषय पढ़ाया नहीं जाता है। और एक देखेंगे, और एक ऐसा ही विषय देखेंगे। मुझे आप सभी से इंटरेक्शन करना, यानी मेरा तरीका ऐसा है कि हम प्रश्न पूछते जाते हैं और आपसे आंसर लेते लेते उसके लिए समाधान देना। लेकिन ये वेबिनार में ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में टाइप की, चैट बॉक्स में आप आंसर भेज दीजिए मेरे प्रश्न के लिए। व्याधि उत्पन्न करने के लिए दोषों की विकृति होना जरूरी है या नहीं? जो बोलेंगे यस या नो, आपका जो कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। व्याधि उत्पत्ति के लिए दोषों का विकृति होना जरूरी है या नहीं? या प्रश्न ऐसा भी ले लीजिए, क्या प्राकृत दोष व्याधि को उत्पत्ति करता है? यानी नॉर्मल रहने वाला दोष व्याधि को लेता है क्या, व्याधि को लाता है क्या? ये मेरा प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जब डिस्कशन चलेगा तब हम उसको चर्चा में लाएंगे। तो ऐसे विषय ग्रंथ में अनेक स्थान में उल्लेखित किया गया है, अनेक स्थान में उल्लेखित किया गया है। तो उनके लिए हम कैसे उसको जानना है? तो ऐसे अगर आपको अध्ययन करना है
तो पहले आपको तंत्र युक्ति का अध्ययन करना अत्यंत महत्व का है। तो ये कहते हुए मैं आज यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण विमान स्थान का देकर अपना व्याख्यान समाप्त करूंगा, और प्रश्न अगर कुछ है तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर चर्चा या प्रश्नों का समाधान ग्रंथ का आधार पर करने का प्रयास करेंगे। अग्नि, 4 प्रकार के अग्नि हम हर जगह पे देखते हैं। तो ये अग्नि कौन कौन से हैं? अग्नि के बारे में विषय जानना बहुत महत्व है। हम क्या कहते हैं? रोगा सर्वे अपि मंदाग्नौ, हर रोग मंदाग्नि से ही उत्पत्ति होता है, ऐसे हम कहते हैं। ये मंदाग्नि से रोग की उत्पत्ति नहीं होती है, रोग की उत्पत्ति अग्नि मांद्य से होती है। अरे आप क्या बोल रहे हैं? इसमें क्या विशेषता है कि अग्नि मांद्य क्या है और मंदाग्नि क्या है? डिस्प्ले जो संहिता को डिस्प्ले कर रहे हैं उनके लिए विमान स्थान 6 चैप्टर सूत्र क्रमांक 12, विमान स्थान 6 चैप्टर सूत्र क्रमांक 12, आप अगर हो सके तो डिस्प्ले कर दीजिए। ग्रंथकार कहते हैं अग्निषु तु शरीरेषु चतुर्विधो विशेषो बल भेदेन भवति। अग्नि शरीर में बल के अनुसार 4 प्रकार का है। तद यथा तीक्ष्ण मंद सम विषम च इति। तीक्ष्ण, मंद, सम और विषम, ये 4 प्रकार के अग्नि। तो उसमें तीक्ष्ण अग्नि, इसका अर्थ क्या है? तत्र तीक्ष्णो अग्नि ही सर्व अपचार सहा, सभी अपचारों को सहन करने वाला अग्नि जो है वो तीक्ष्ण है। पूरा बता के मैं एग्जाम्पल यानी सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूंगा। और तद विपरीत लक्षण तो मंद, कभी कोई भी अपचार हो जाए तो उससे व्याधि हो जाता है। समः तु खलु अपचारतः विकृतिम आपद्यते, अनपचारः तु प्रकृतिम अवतिष्ठते। समाग्नि का मतलब क्या है? जब अपचार होगा तब विकृति होगा यानी व्याधि होगा, जब अपचार नहीं करेंगे यानी अपचार के विपरीत उपचार करेंगे तब वो आराम रखेगा। और विषम अग्नि का लक्षण है, विषम लक्षण विपरीत लक्षण तु सॉरी समलक्षण विपरीत लक्षण तु विषम। विषम का अर्थ उल्टा पुल्टा है, उपचार किया तो भी कभी कभी विकृति लाता है, अपचार किया तो भी कभी कभी स्वास्थ्य को बनाए रखता है। ये 4 प्रकार के अग्नि हैं। तो इसका महत्व क्या है? इस अग्नि के बारे में क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि हर कॉलेज में हर वैद्य के मन में एक सूत्र अत्यंत प्रचलित है कि रोगा सर्वेपि मंदाग्नौ, हर रोग के लिए मंदाग्नि कारण। ऐसा कभी नहीं है। आप सभी के लिए ये ज्ञान लाना बहुत आवश्यक है। तो इसको कैसे हम समझें? मंदाग्नि और अग्निमांद्य दोनों में अंतर क्या है, ये समझना अत्यंत महत्व का है। समझिए, आप सभी कॉलेज के एक फंक्शन में आपने खाना खाया, सभी ने सेम खाना खाया। आपके जगह पे क्या खाना रहता है, परोटा विरोटा रहेगा शायद, आप सभी ने वही खाया। और आप सभी जो जो वहां पे खाना खाए, उसी दिन शाम में या दूसरे दिन या 2 दिन के आगे पीछे किसी को लूज मोशन हुआ, किसी को बुखार आया, किसी को सिर दर्द होने लगा, किसी को हाइपर एसिडिटी होने लगा, और कोई बहुत आराम है, कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे क्यों दिखाई देता है? क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे बहुत बार होता है। पर्टिकुलरली जो हॉस्टल को देखने वाले वैद्य रहते हैं, यानी हॉस्टल के रेसिडेंट्स को चेक करने के लिए जो वैद्य जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत कॉमन है। जब विजिट के लिए डॉक्टर जाएगा तब एक विद्यार्थी कहे मुझे लूज मोशन हो रहा है, और दूसरा कहे मुझे वॉमिटिंग हो रहा है, तीसरा कहेगा मुझे बुखार आ रहा है, और कोई कहेगा पेट दर्द है, दूसरा कहेगा कि मुझे
पूरे बॉडी में पेन है, मुझे रैशेस हो रहे हैं, तो ये वैद्य को कंफ्यूजन में है, वो सभी को पूछते जाए तू क्या खाया, तू क्या खाया, हम सभी ने सेम खाया। तो ये क्यों हो रहा है? किसी को वमन हो रहा है तो किसी को विरेचन हो रहा है, किसी को उदर का हो रहा है तो किसी को शीत पित्त हो रहा है, किसी को शिरशूल हो रहा है, कोई तो आराम है। इसका कारण अग्नि अग्नि में विकृति रहना, यानी ये जो अग्नि है, 4 प्रकार की अग्नि, ये जन्मतः फिक्स है, जन्मतः ये कभी बदलते नहीं है। अग्नि, तीक्ष्णाग्नि के व्यक्ति का आप मंदाग्नि नहीं कर सकते। उसकी तीक्ष्ण अग्नि को, उसका इफेक्ट कम करने के लिए आप अग्नि से गुरु रहने वाला आहार दे सकते। जैसे एक एक व्याधि है, भस्मक करके व्याधि उल्लेख है। भस्मक व्याधि का मतलब यह है कि वो आज 10 बजे खाएगा अच्छा खाना, 4 रोटी, इतना चावल, स्वीट, सब कुछ खाएगा। 12 बजे फिर से उसको भूख लगती, 2 बजे फिर से भूख लगता है, 5 बजे फिर से भूख लगता है, तो इसको भस्मक कहते हैं। और हर भूख में वो उतना ही खाएगा। तो ऐसे अवस्था में उसका अग्नि क्या है? वो तीक्ष्ण है, यानी जन्मतः उसका अग्नि तीक्ष्णाग्नि है। तो तीक्ष्णाग्नि को आप मंदाग्नि में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अग्नि जन्मतः तीक्ष्ण है। उसका प्रभाव कम करने के लिए आप गुरु आहार दे सकते हैं। वही तो चिकित्सा सूत्र है भस्मक का। गुरु च अपतर्पणम शस्तम स्थूलानाम कर्षणम प्रति। गुरु और अपतर्पक आहार को ऐसे तीक्ष्णाग्नि वाले व्यक्ति को देना चाहिए। और एक व्यक्ति है जो मंदाग्नि वाला व्यक्ति है, जन्मतः अग्नि मंद है, वो दाल खिचड़ी के अलावा अगर कुछ पुलाव विलाव मसालादार चीज खाया, थोड़ा ही मसाला डाला है, बहुत मसाला नहीं है, फिर भी उसका पेट में गड़बड़ आता है। तो ऐसे व्यक्ति का अग्नि मंद है, जन्मतः मंद है, यानी वो अग्नि का कैपेसिटी इतना है कि वो अन्य आहार उसके प्रमाण के अनुसार अगर थोड़ा भी बहुत हो गया तो अग्नि उसको पचन करने में असमर्थ हो जाता है। तो इसको मंदाग्नि कहते हैं। तो ऐसे अग्नि को, अग्नि के विचार को हर वैद्य को हर स्थान में हर व्यक्ति में विचार करना ही चाहिए। और अग्नि को विचार किए बगैर चिकित्सा में कभी भी इनिशिएशन नहीं ले। ये अग्नि का अत्यंत महत्व विषय है। ये बता के मेरा ये जो छोटा प्रयास है चरक संहिता के गूढ़ार्थ को प्रदर्शित करने का, मेरे गुरुवर्य के अनुग्रह से, अपने माता पिता के पुण्य कर्म से जो भी मैंने आज आपके सामने रखा है, ये उनके पुण्य कर्म से है। अनेन भावी यत् पुण्यम तदाप्नोतु गुरुर्मम। जो विषय अंतर किया है, यानी विषय से छोड़कर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर मैंने दिया है तो वो सभी मेरे खुद के दोष हैं, ये बताते हुए आज के इस वेबिनार में मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ। और सभी जो इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजर्स हैं, महाविद्यालय के प्रमुख हैं, उन सभी के लिए मैं अपना प्रणाम देता हूँ। और रवि वर्मा सर को विशेष प्रणाम मैं अपना सूचित करता हूँ। धन्यवाद। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आपने स्टार्ट किया था, एक्चुअली जो संहिता वो तद्विद्या से संभाषा जैसा ने आपने स्टार्ट किया विथ संस्कृत, विथ प्रॉपर टेक्स्ट, विथ चक्रपाणी कमेंट्री। इसके लिए हम बहुत आभारी है आपके लिए, क्योंकि जैसा कि आपने स्टार्ट किया था, एक्चुअली हमारा जो आचार्यों का इंटेंशन है, जब हमको पता चलेगा जो प्रॉपर उन्होंने जैसे कि बताया, जब वैसे पढ़ाने से तब हमको वो मिल जाएगा। जैसे कि आपने सातवें का रेफरेंस लिया था, सो सातवें को तो हम तो वैसे नॉर्मल हम ले लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में, क्योंकि ये ट्रांसलेशन की वजह से ऐसा होता है। जब हम अंतर जो संस्कृत में जो कहा गया उससे पढ़ने से एक्चुअली जो देश का जो आपने जो बताया था उसी टाइम पे जो व्याधि का विपरीत हो, वो जैसा एक्चुअली ऐसा समझना चाहिए। इट इज वेरी हेल्पफुल आवर स्टूडेंट्स एंड आवर पार्टिसिपेंट्स,
एंड दूसरी बात, आप जैसे कि बात किया नेक्स्ट टेक्सटुअल जो विमान स्थान में बताया गया अग्नि के बारे में। अग्नि जैसे कि तीक्ष्णाग्नि में, जो तीक्ष्णाग्नि में जब मंद होता है तब वो जो भी वो पर्टिकुलर प्रकृति में वो रोग को कारण करेंगे। वैसे तो सर्वे रोगा तो मंदाग्नि वो हम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। जैसे कि आपने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन एक पूछा था सर आपने टेक्स्ट करने के लिए, जो दोष विकृति में डिसीज आएगी उसके लिए बहुत आंसर सबने यस किया था। आपने उसके बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए आपने क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ये इट्स हेल्पफुल फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स। श्योर सर, श्योर। मैं डिस्प्ले जो कर रहे थे उनसे निवेदन करूंगा कि चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय ग्रहणी दोष चिकित्सितम, उसमें श्लोक क्रमांक 36, ग्रहणी दोष चिकित्सितम, चरक संहिता चिकित्सा स्थान, चैप्टर 15, वर्स नंबर 36। यस सर, करेक्ट है। हम सामान्यतः जब चिकित्सा के बारे में या व्याधियों के बारे में जानने के लिए प्रारंभ करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे किताब हमको ऐसे पढ़ाते हैं कि विकृति दोष में आए बगैर व्याधि उत्पत्ति नहीं होती है। यानी अगर व्याधि होना है तो दोष विकृत होना यह अत्यंत जरूरी है, ऐसा एक विषय हमको मिलता है। लेकिन एक रेफरेंस ऐसा ग्रंथ में है जो बताता है कि अविकृत दोष भी व्याधि को कर रहा है। दोष अविकृत है फिर भी व्याधि को बना रहा है। तो इसके लिए चरक का वाक्य और चक्रपाणी का जो व्याख्यान है वो दोनों वहां बहुत महत्व का है, जो डिस्प्ले किया गया है। ग्रहणी दोष चिकित्सा के अध्याय के इस सूत्र में जीर्ण क्रिया के व्याख्यान के बाद ग्रंथकार इस वाक्य को यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कहते हैं व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेप उचित कर्मणा युगपत् सर्वतोजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा क्षिप्यमाणा खवैगुण्याद् रसः सज्जति यत्र सः करोति विकृतिम तत्र स्वे खे वर्षमिव तोयम। वो कह रहे हैं व्यान से रसधातु विक्षेप और उचित उचित कर्म से अगर विक्षिप्त हो गया, नीचे चक्रपाणी लिखते हैं वो बहुत महत्व का है, उचित कर्म इति चक्रपाणी का अगर वो आप हाईलाइट कर सकते तो अच्छा होगा। विक्षेप उचितम प्राकृतम कर्म यस्य स विक्षेप उचित कर्म, दूसरे लाइन पे है, दूसरे लाइन पे उचितम प्राकृतम कर्म, चक्रपाणी के दूसरे लाइन, आप उसको कर्सर को रखकर हाईलाइट करेंगे तो सभी को दिख सकता है। विक्षेप उचित कर्मणा, यानी उचित शब्द का अर्थ चक्रपाणी क्या कह रहे हैं, उचितम इति प्राकृतम, प्राकृत कर्म करने वाला व्यान और रस धातु जब जब वो फैल रहे हैं देह में और जहां जहां पे वो रुकते हैं, दोष यहाँ पे विकृत नहीं है क्योंकि वो प्राकृत है, धातु यहाँ पे विकृत नहीं है, वो प्राकृत है। जहां जहां जब वो पूरे शरीर में व्यान दोष के सहाय से रस धातु संचरण कर रहा है, प्राकृत रस धातु संचरण कर रहा है, जहां जहां वो रुकता है वहां व्याधि का निर्माण करता है। युगपत् सर्वतोजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा क्षिप्यमाणः खवैगुण्याद् रसः सज्जति, सज्जन यानी जहां पे रुकता है, यत्र सः करोति विकृतिम तत्र वहां पे विकृति को लाता है। यानी प्राकृत दोष भी अगर निरंतर गतिशील होने के बगैर अगर कहीं भी रुक गए, तो जहां जहां दोष प्राकृत हो या विकृत हो
जहां वो रुकते हैं वहां पे व्याधि को निर्माण करते हैं। यानी प्राकृत दोष भी व्याधि निर्माण करने में समर्थ है। और उसके लिए ग्रंथकार ने सिमिली दिया है, खे वर्षमिव तो यदा। खे शब्द का अर्थ आकाश है, तोयद यानी बादल है, वर्षा यानी रेन, बारिश होना है। आकाश में जब बादल चलते रहते हैं, बादल का अर्थ ही बारिश होने के या पानी के इकट्ठे हुए बड़े बड़े वस्तु है। जब वो चलनशील है, मूवमेंट हो रहा है, तो बारिश नहीं आता है। जब वो रुक जाते हैं, जहां पे रुकते हैं वहां पे बारिश करते हैं। यानी मतलब कहने का अर्थ है ये है कि दोष और धातु शरीर में निरंतर गतिशील रहते हैं, सदैव गतिशील रहते हैं, जो प्राकृत हो या विकृत हो। इसके विपरीत तंत्र युक्ति से हमको ये जानना है कि अगर दोष एक जगह पे रुक गए तो व्याधि करेंगे। प्राकृत भी कर रहा है, ऐसे ग्रंथकार ने लिखा। यानी इसका मतलब क्या, दोष सदैव संचरणशील रहना चाहिए, वो प्राकृत हो या विकृत हो। अगर दोष विकृत होने के बावजूद भी अगर वो संचरणशील है तो कभी भी व्याधि नहीं होता है। यही जो अग्नि के ऊपर आधारित है कि हम सभी ने सिमिलर आहार खाया, बहुत लोगों को कुछ कुछ बीमारी हुआ और अन्य किसी को कुछ बीमारी नहीं हुआ। जिसको बीमारी नहीं हुआ, जो विषान्न प्राशन के बाद भी अगर उसको बीमारी नहीं हुआ, इसका मतलब दोष विकृत जरूरी है, लेकिन वो स्टैग्नेंट नहीं है, एक जगह पे नहीं रुके हैं, वो निरंतर गतिमान है, गतिशील है, इसलिए व्याधि का उत्पत्ति नहीं हुआ है। ये कहने के लिए मैंने ये प्रश्न आप सभी के सामने रखा था, और बहुत विद्यार्थियों ने यस करके कहा है, यानी प्राकृत दोष भी व्याधि को निर्माण करता है, ऐसा प्रश्न का उत्तर यस कहा है। तो आपका अध्ययन अत्यंत महत्व का हुआ है, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कुछ प्रश्न है तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। I will request all the participants to please put questions in chat box so we can discuss with sir. Please put your questions in chat box. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सर for your elaborate explanation. Yes, sir. We are requesting our participants, please put your questions if you have any, or not a question, so if you have any doubts, if you want to discuss, like sir already told that his expertise in Tadvidya Sambhasa. If you have any queries, not only on today's presentation, regarding any Samhita, if you have any general doubts, please discuss with sir. Sir, actually, it is not here. Actually, many of our students asking about this when we are already quoted that Navan and Navapana. Whenever we are talking in this diabetes, people have our students this question: how we can say this Navana and Navapana? How we will correlate with the nowadays scenario, sir? ये प्रश्न यानी बहुत सिंपल ऐसा मुझे लगता है। नवान्न यानी आज हमने हार्वेस्टिंग किया और पैकिंग किया, इमीडिएटली लेना और उसको खाना, ये नवान्न है। तो मैं आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जब भी आप ग्रोसरी के शॉप में ग्रोसरीज लाते हैं, तो सामान्य रूप में हम क्या करते हैं, इस महीने के लिए क्या चाहिए वो इतना ही लाते हैं।
चावल 5 किलो या 10 किलो, गेहूं 5 किलो, हम ऐसे लाते हैं। और ग्रोसरी शॉप में ये नया है या पुराना है ये हम नहीं बता सकते, या यानी हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो मेरा आप सभी से निरोध निरोध अविरोध है कि आप सभी ऐसे कीजिए कि 1 साल के लिए जितना चावल लगेगा वो ला के उसको आप जैसे प्रोसेसिंग करना चाहेंगे वो प्रोसेसिंग कीजिए, ताकि उसमें कीड़े ना हो, उसको स्टोर कीजिए। और इस साल जो आप चावल खरीद रहे हैं उस चावल को आप अगले साल इस्तेमाल कीजिए। तो ये डेफिनेटली नवान्न नहीं होगा। ये पहला विषय आपके लिए। और दूसरा, डेट ऑफ पैकिंग जो रहता है ग्रेन्स के ऊपर, पर्टिकुलरली ग्रेन्स के ऊपर, डेट ऑफ पैकिंग अगर या मार्केट में जो सेल के लिए आता है वो, आई एम स्पीकिंग पर्टिकुलरली अबाउट धान्य, नव अन्न, ये मैगी ब्रेड ये सभी नया ब्रेड, आज का ब्रेड, फ्रेश ब्रेड, उसको भी नवान्न है तो व्याधि पड़ेगा, ब्रेड भी इसमें नहीं आता है ग्रंथ में, केवल धान्य के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो हार्वेस्टिंग के टाइम में अगर उसका पैकिंग डेट है, समझिए जून में हम दाने उगते हैं और 3-4 महीने के बाद उसका हार्वेस्टिंग होता है, तो अक्टूबर नवंबर में अगर पैकिंग डेट है तो हमको ये समझना है कि वो नवान्न है। तो उस पैकिंग के पहले ही जो डेट का ग्रेन्स रहेंगे उसको लाना, ये कुछ हद तक हम नवान्न का सेवन रोक सकते हैं। अभी प्रश्न आया नवपान, यहाँ पे पान शब्द का अर्थ केवल जल से है। दुग्ध ये नया ही लेना पड़ेगा, अभी अभी हमने दूध लिया है गाय से या भैंस से, तो उसको ही हमको इस्तेमाल करना, उसको 2 दिन के बाद हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पान शब्द से अर्थ केवल जल से है। बारिश होने के बाद जो पानी नदी में या तालाब में रहता है वो नव रहता है, क्योंकि वहां पे उष्ण यानी सूर्य के रश्मि का संस्कार नहीं होता। तो ऐसा पानी ये नव पानी है। तो बारिश के मौसम में गवर्नमेंट के सप्लाई के जो पानी है उसको उबाल के पीना, ये नव पान का हम रोक सकते हैं। तो अगर ये हम करते हैं तो डेफिनेटली हम प्रमेह से कुछ हद तक बच सकते हैं। Yes, sir. Thank you, sir. We have a Thank you. question, sir. One participant kept on question. In patient with Tikshnagni, will the disease be only by Swatantra dosha prakopa? No. Dosh can be related with स्वतंत्रता और परतंत्रता। इसका व्याख्यान आपको गुल्म में मिलेगा, गुल्म निदान, अगर आप डिस्प्ले कर सकते हैं तो आप देख लीजिए। गुल्म निदान सूत्र क्रमांक 6, निदान स्थान चैप्टर 3 सूत्र क्रमांक 6। तो वहां पे ग्रंथकार कहते हैं, यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वर वमन विरेचन अतिसाराणाम अन्यतमम कर्षणेन कर्षितः वातलम आहारम आहरति। ये आगे पूरा बता के अंत में बताते हैं, अन्यद्वा किंचित एवं विधम विषमम अतिमात्रम व्यायामजातम आरभते तस्य अपचारात् वातः प्रकोपम आपद्यते। इन कारणों से वायु का प्रकोप हो रहा है, लास्ट वाला। इन सभी कारणों, ऊपर बताए हुए कारण से क्या हो रहा है, अपचार से वायु का प्रकोप हो रहा है। अब आगे 8वें श्लोक में देखिए, उसी चैप्टर के 8वें श्लोक में अंत में देखिए, तैहि एव तु कर्षणैहि कर्षितस्य आम्ल लवण कटुक्षार इत्यादि इत्यादि, इनके कारण से संधारणात् वात आतपौच अतिसेवमानस्य पित्तम सहा मारुतेन प्रकोपम आपद्यते। कारण निदान क्या है, पित्त का है। 8वें श्लोक, शायद आपने 7वां निकाला, या करेक्ट है, करेक्ट है। इन कारण से क्या बता रहे हैं ग्रंथकार, पित्तम सह मारुतेन प्रकोपम आपद्यते।
पित्त की वृद्धि होने के सभी निदान है। कटु है, तिक्त है, आम्ल है, क्षार है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, मध्य है, हरितक है, दही है, इत्यादि कारण से कौन सा दोष प्रकोप होगा? ये पित्त ही प्रकोप होगा। लेकिन पित्त प्रकोप होने से गुल्म नहीं होता है। पित्त प्रकोपित पित्त वायु को डेफिनेटली विकृति में लाता है। पित्तम सह मारुतेन प्रकोपम आपद्यते। पित्त की प्रकोप भी मारुत से ही हो रहा है। तो ये स्वतंत्र वातज गुल्म स्वतंत्र हो गया और पित्तज गुल्म परतंत्र हो गए। तीक्ष्णाग्नि हो या मंदाग्नि हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तीक्ष्णाग्नि में केवल स्वतंत्र दोष से या स्वतंत्र कारण से दोषों का प्रकोप हो। सभी चारों प्रकार के अग्नि के प्रकृति के पुरुषों में स्वतंत्र विकृति भी हो सकता है और परतंत्र विकृति भी हो सकता है। Yes, sir. Thank you, sir. I think there is no new question, sir. Okay. So now I am requesting our principal, sir, to for vote of thanks. Thank you, sir. Thank I you, would sir. like to thank no, I would like to thank Dr. Saurabh sir invitation as a guest speaker in a very short duration of time and sharing his valuable knowledge and all the hidden things from the Sahitas with all the delegates. Thank you so much, sir, for giving us time from your busy schedule, sir. Thank you. I would like to thank. I would also like to thank our Honorable Chairman, Dr. Shailendra Yadav, sir, and Director, Dr. Sunita Yadav, ma'am, for giving this platform so that we can give or share our knowledge to all the students all over the India or different parts of the India. I would also like to thank our organizing young and energetic team, Dr. Nihar, sir, Dr. Preeti, ma'am, Dr. Sinas, and Dr. Gaurav, sir, for their valuable IT support and smooth conduction of this webinar. I also like to thank our today's moderator, Dr. T. Rambabu, sir, for his kind and patience gi- giving the time to this webinar. Lastly, I would also like to thank to all the delegates who have attended this webinar from their various institutions and colleges of different. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. And it was a really fabulous session and an eye opener for all of us. I hope all the delegates have extracted the benefit from this session. And I will really hope that in future also, sir will be with us when we need him. I think he's an emergency package like thing. So very, very dynamic and very, very knowledgeable person. Thank you so much, sir, for being with us. And I will request all the participants to be patient because within next 7 working days, you will be receiving your certificates through email, which email you have registered. So if anyone has used somebody else's email ID, then please inform us. Please inform us so that we can send you the certificates properly. And I would like to also say that all the participants who have participated with us for the whole session, they are really very, very important because without you all people, we are not able to conduct anything successfully. So for the success of this webinar, we will thank you all. So with this, I would like to end this session, end this webinar of today's. Excuse me. Yes, sir. Yes, sir.
आप सभी से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा जो तद्विद्या संभाषा परिषद यूट्यूब चैनल है, आपके माध्यम से मैं सभी को उस चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए मैं आमंत्रण देता हूं, क्योंकि इस चैनल पर हम हर दिन एक एपिसोड सहस्त्र योगम का चला रहे हैं। जैसे सहस्त्र योगम जो 1000 वैद्यकीय उपकरणों का यानी औषधों का जो संग्रह है, उसके बारे में कौन से भी कॉलेज में या पीजी के स्टडीज में नहीं बताते। तो जो अनुक्त और दुनिया में मालूम ही नहीं ऐसे जो क्या योग हैं, औषध योग, उनको हमको पूरे दुनिया को दर्शाना है। इस उद्देश्य से हर दिन एक एपिसोड सहस्त्र योगम का चल रहा है, और रेगुलरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यानी यूट्यूब पे लाइव सेशंस हमारे संहिता के ऊपर फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर बीएमएस और पीजी स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस है, सभी सब्जेक्ट के, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदय, संस्कृत, और बाकी सभी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर तक सभी सिलेबस हमने रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे डाला है। तो आपके माध्यम से मैं आपके पार्टिसिपेंट्स और आपके विद्यार्थियों को भी मैं ये अनुरोध करता हूँ कि वो सभी उस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है तद्विद्या संभाषा परिषद, या मेरे नाम से आप सर्च कीजिए तद्विद्या संभाषा परिषद में, आप सभी को उसका डिस्प्ले यूट्यूब चैनल में हो जाएगा। श्योर धन्यवाद, सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, श्योर। हम लोग भी आपका यूट्यूब चैनल का लिंक हम लोग शेयर कर देंगे हमारे स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी, और प्रबोधिनी ग्रुप में भी हम लोग शेयर करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पक्का ज्वाइन करिए, क्योंकि सर का एक लेक्चर अटेंड करके मुझे तो जैसे वो बोलते हैं ना, नशा सा हो गया कि नहीं, आगे भी अब बहुत कुछ सुनना चाहते हैं हम आगे भी। तो थैंक यू सो मच सर। विद दिस वी विल एंड दिस सेशन विथ आवर नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you so much. Namaskaram to all.